A very beautiful good morning one and all. Today our topic is national income and related aggregates. Are you ready? Yes, ma'am. First of all, I want to clear what is national income. National income is monetary measurement of a country income. All the residents' income which is earned in our domestic territory and out of the domestic territory. In other words, it is the sum total of the income of the residents who earning in the domestic boundary of a country or out of the boundary. यहाँ हम बात करें कि नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम एक मेजरमेंट है, मॉनेटरी मेजरमेंट है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी देश के नागरिकों की नेशनल इनकम देश की बाउंड्री के अंदर और देश की बाउंड्री के बाहर, यानी विदेशों से होने वाली इनकम को भी यहाँ पर ऐड किया जाता है. सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री और आउट ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्री. नाउ वी जस्ट Dadabhai Naoroji was the first man who calculated national income in 1868. दादाभाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया. आफ्टरवर्ड R.V. Rao and C.R. Desai were the persons who calculate the national income before the independence. After independence in 1949, the National Income Committee was formed under the chairmanship of P.C. Mehla Nobis. He was the chairman of this committee, and Simon Kuznets was the advisor of this committee. Afterward, in 1956, the CSO is just publishing the data of national income, यानी सेंट्रल जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है हमारा, वो आज तक 1956 से लेकर आज तक नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उसके डेटा को पब्लिश करता है. सो इट इज क्लियर कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ओनली सम पीपल्स आर जस्ट गिव सम एफर्ट्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. आफ्टरवर्ड्स द कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड नाउ द डेज CSO is just presenting the data related the national income. अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. व्हाट इज नेशनल इनकम? अभी मैंने आपसे बताया द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम. According to the definition of national income, there are certain characteristics of national income. The first one is it is concerned with any country. For example, the national income of America, the national income of India, and the national income of Pakistan. यानी जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इट इज कंसर्न विद एनी कंट्री, किसी ना किसी देश से रिलेटेड होती है. द सेकेंड थिंग इज इट इज एनुअली कैलकुलेटेड. जो नेशनल इनकम है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअली कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 1st April to 31st March. तो नेशनल इनकम का पहला हो गया, इट इज कंसर्न विद एनी कंट्री. द सेकेंड वन इट इज एनुअली कैलकुलेटेड एंड द थर्ड वन इट इज मेजर्ड only in money. जो नेशनल इनकम है केवल उसका मॉनेटरी मेजर्स वी जस्ट एडेड. देन द फोर्थ वन इज only productive activities.
only productive activities are calculated in national income. यानी जितनी भी productive activities है we just calculated in national income. The next thing is only final goods and services are calculated in national income. ठीक है, केवल final goods and services are calculated in national income. Here I want to clear what is final goods and services. There are two type of goods and services, that is intermediate goods and final goods. Intermediate goods are the goods which are not ready to sell, जो भी बनकर तैयार नहीं हुई है पूरी तरह से, इसलिए the value of these goods are not yet added. These goods are within the production boundary. ये कि वो गुड्स है जिनका अभी पूरी तरह प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए इनकी वैल्यू ऐड नहीं हुई और ये सेल के लिए रेडी नहीं है. These goods are not added in national income, while as final goods are ready to sell. The value of these final goods and services are added, and these goods and services are out of the production boundary. These goods and services are included in national income while calculating the national income. So these are the differences between the intermediate goods or the final goods. Is it clear right now? कि आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ 4 मार्क्स का कि what is the difference between intermediate good और the final goods. ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारी नेशनल इनकम है वो किसी देश की करेंसी में काउंट होती है. इट इज काउंटेड इन कंट्रीज करेंसी. ठीक है, अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो वो रुपीज में काउंट होगी. तो जिस देश की जो करेंसी है वो उसी में ही नेशनल इनकम काउंट की जाती है, अदर में आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो चीजें हैं जो आपको नेशनल इनकम से आप में ध्यान रखनी पड़ती है कि while the calculating the national income we just calculated and related with any country, it is counting according to their financial or accounting year. For example, in India it is from 1st April to 31st March. National income is only a monetary measures. इसमें सारी जो भी चीजें goods और services हैं, they are counted or valued only in monetary transactions. Only productive activities, non-productive activities are not calculated while calculation the national income. Now, what are productive activities and what are non-productive activities? The productive activities, for example, if a person is working in a factory, it is productive activity. If a person is working at their home, it is non-productive activity. काम वो वहां भी कर रहा है, काम वो यहाँ कर रहा है. For example, I am teaching you. This is a productive activity. While I am teaching my own son, that is not productive. ठीक है, अगर एक व्यक्ति, एक टीचर अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा, that is productive activity. अगर वो खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है, that is non-productive activities. ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? These are the characteristics of national income. Only final goods and services are added, not intermediate ones. And the last one, it is counted in the currency of any country. जिस देश की नेशनल इनकम को काउंट करेंगे उस देश की करेंसी में ही उसे काउंट किया जाएगा. ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें एग्रीगेट्स की. अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट्स की, aggregates of national income. तो नेशनल इनकम का सबसे पहला जो एग्रीगेट है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP ऑन MP. सबसे पहला जो एग्रीगेट है दैट इज GDP ऑन
MP, the full form is gross domestic product. As we know, according to the definition, the income of the resident of a country within a domestic territory. अगर हम किसी देश के नागरिकों की इनकम उसकी डोमेस्टिक यानी जो देश के नागरिक है देश के अंदर रहकर जो कुछ अर्न करते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट वैल्यू. अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी. यदि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी है, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, जीडीपी एमपी की बात करें, तो दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है. यहां सी का मतलब है कंजप्शन, आई का मतलब है यहां पर इन्वेस्टमेंट. अब कंजप्शन प्राइवेट भी होता है और कंजप्शन गवर्नमेंट भी करती है. इन्वेस्टमेंट भी यहां पर हो गया प्राइवेट और गवर्नमेंट. यहां पर ये जी दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब यहां पर है इम्पोर्ट्स. ओके, द फॉर्मूला इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. यानी कंजप्शन, ऑल द कंजप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ऑल द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं. अगर हम इसे टोटल कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, जीडीपी ऑन एमपी. क्लियर? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? Yes, ma'am. आगे बताऊं? Yes, ma'am. The next one is NDP on MP. This is net domestic product. ठीक है, on market prices. And what is the difference between GDP or NDP? GDP means gross domestic product. NDP means net domestic product. So we deduct the depreciation from the GDP. When I found out MP, I just deduct GDP. MP में से मैं क्या deduct करूंगी? Only depreciation. ठीक है, जीडीपी एमपी में से मैंने क्या डिडक्ट किया? डेप्रिसिएशन, फॉर गेटिंग द एनडीपी ऑन एमपी. क्लियर? Yes, ma'am. नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या है डेप्रिसिएशन? इट इज द वियर एंड टियर ऑफ फिक्स एसेट्स. व्हेन यू यूज फिक्स एसेट्स इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, जब आप कभी भी प्रोडक्टिव प्रोसेस में एसेट्स का यूज करते हैं, फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं, तो उनमें डेप्रिसिएशन लगता है. अब डेप्रिसिएशन क्या हो गया? उनकी जो एसेट्स की वैल्यू वो धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूजिंग अ मशीनरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्स्ट टाइम ही प्रोडक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ, आफ्टरवर्ड्स ही नीड उसको क्या जरूरत पड़ेगी? किसी ना किसी वियर एंड टियर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इस तरह से जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं उन्हें वियर एंड टियर की जरूरत पड़ती है, देखभाल की जरूरत पड़ती है. तो नेक्स्ट ईयर वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सो दैट इज डेप्रिसिएशन. क्लियर? Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज एनडीपी ऑन एफसी. वहां हमने बात की एमपी, अब हम बात करें एफसी. So there is a difference between market price and factor cost. Market price. On the market price, the taxes are added, already added in the value. जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो उसमें टैक्सेस पहले से ही ऐड है.
और सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड, सब्सिडीज उसमें नहीं होती. When we just talking about the factor cost, so we deduct the IT from the market price and added the subsidies in the market price. यहाँ पर देखिए आप, हमें क्या निकालना है, एनडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे. तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एनडीपी दे रखा है मार्केट प्राइस पर, तो आप क्या करेंगे, माइनस आईटी प्लस एस. यहाँ आईटी का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस और एस क्या हो गया, सब्सिडीज. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? मैम जो शिफ्ट होता रहता है वन पर्सन से अनदर पे, जैसे कि कोई शॉपकीपर अगर वो कोई चीज़ परचेज करके सेल कर रहा है तो मतलब उसका जो टैक्स रहता है ना वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर से निकाल के. बिल्कुल. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस जिन पे लगाए जाते हैं, दे डोंट हैव टू पे, वो पे नहीं करते. ही जस्ट शिफ्टेड देयर बर्डन टू द अनदर पर्सन, वो दूसरे पे अपना शिफ्ट कर देते हैं. जैसे आपसे गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्सेस होते हैं, वो किस पे करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे शिफ्टेड दीज बर्डन टू द कंज्यूमर, वो ये बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देते हैं. तो ऐसे टैक्सेस क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो गए, एग्जांपल दीजिए. डायरेक्ट टैक्सेस, मैम अगर हमने कोई चीज़ परचेज करी है तो अगर उसके ऊपर कुछ भी मतलब टैक्स होगा तो वो सीधा हम ही पे करेंगे, हम उसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते. हाँ. तो एग्जांपल बताओ, ऐसा कौन सा टैक्स है जो आप डायरेक्ट पे करते हैं? Income tax. हाँ, इनकम टैक्स है ना. वो कैसा होता है, आप पर ही लगता है आपकी इनकम पे और आपको ही पे करना पड़ता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ तक यस क्लियर मैम. है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. आगे बताऊं? यस. Yes, ma'am. ओके. अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज जीएनपी. जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस. दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस. अभी हमने बात की थी, व्हेन वी काउंटेड द नेशनल इनकम, वी जस्ट एडेड द नेशनल इनकम विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री और आउट ऑफ द बाउंड्री. यानी डोमेस्टिक इनकम में जब मैं ऐड कर दूंगी, अगर मुझे जी एन पी एम पी निकालना है, सो जी डी पी एम पी प्लस एन एफ आई ए. ठीक है, जीडीपी एमपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी देश की सीमाओं के अंदर जितना भी अर्न किया गया रेजिडेंट ने वो तो मैंने ले लिया. आई जस्ट एड द एन एफ आई ए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ठीक है, यानी देश के अंदर जो आपने कमाया और विदेशों से आपको जो फैक्टर इनकम मिली उन सबको ऐड कर दिया, तो क्या बन गया आपका जीएनपी ऑन मार्केट प्राइसेस. क्लियर? ये समझ Yes, में ma'am. आया कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनपी ऑन मार्केट प्राइसेस. जब आप जी एनपी ऑन मार्केट प्राइसेस में से डेप्रीशिएशन हाँ, तो हम बात कर रहे थे जीएनपी ऑन एमपी. मैंने आपसे कहा दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. So it is the sum total of domestic product and NFIA. What is NFIA? That is net factor income from abroad. तो अगर हम इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखें तो भी सही है, C प्लस I प्लस G प्लस NFIA प्लस X माइनस M.
ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इन दोनों फॉर्मूलाज में? नो मैम। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सारे एग्रीगेट्स? यस मैम। क्योंकि आप एग्रीगेट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, माइंड में उनके फॉर्मूलाज याद करेंगे, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अब हम बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द NNP-MP। व्हाट इज NNP? दैट इज, अगर हम NNP-MP की बात करें, NNP-MP है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP-MP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है तो, और हमें दे रखा हो GNP ऑन मार्केट प्राइसेस, क्या डिफरेंस है G और N का? ग्रॉस और नेट में जब डिफरेंस होता है तो हम क्या डिडक्ट करते हैं? डेप्रिसिएशन। सो माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन वहां पर डिडक्ट कर दिया। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज NNP ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज NNP ऑन फैक्टर कॉस्ट? दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब FC मतलब फैक्टर कॉस्ट पे। ये जो NNP ऑन FC है, दिस इज इक्वल्स टू NI। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को हम किसके बराबर मानते हैं? NI के, नेशनल इनकम के, यानी नेशनल इनकम को जिस कॉन्सेप्ट पे हम काउंट करते हैं दैट इज NNP ऑन FC। अब NNP ऑन FC कैसे निकाला जाएगा? NNP FC इक्वल्स टू, अगर हमें दे रखा है NNP MP, ठीक है, डिफरेंस क्या है? ये भी NNP है, ये भी NNP है। FC और MP का डिफरेंस है। हमें MP को किस में कन्वर्ट करना है? FC को। मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर इनकम में। तो हम क्या करेंगे? माइनस IT और प्लस सब्सिडीज। यहाँ IT का मतलब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस और S क्या हो गया आपका? सब्सिडीज। क्लियर? यस मैम। ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके? सबसे पहले हमने पढ़ा GDP ऑन मार्केट प्राइसेस। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये क्लियर हो गया? यस मैम। सेकेंड जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? GDP ऑन फैक्टर कॉस्ट, यानी हम मार्केट को किस में चेंज करें? फैक्टर कॉस्ट में। तो हमने GDP ऑन मार्केट प्राइस में से माइनस किया IT और प्लस किया सब्सिडी, तो क्या निकला है? फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा NDP। NDP क्या है? कि जब आप GDP में से दोनों अगर मार्केट प्राइसेस पर हैं तो हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर आपने देखा GNP। जब हम GNP की बात करते हैं मार्केट प्राइसेस पर, इट इज GDP ऑन मार्केट प्राइसेस प्लस NFIA, या फिर हम इसको कह सकते हैं C प्लस I प्लस G प्लस NFIA प्लस X माइनस। X माइनस M। ओके, और यदि मुझे निकालना हो NNP ऑन मार्केट प्राइसेस, तो जो GNP ऑन मार्केट प्राइसेस दे रखा है मैं उसमें से माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यदि मुझे निकालना हो NNP ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालना हो और मुझे दे रखा हो NNP ऑन मार्केट प्राइस, तो माइनस IT प्लस सब्सिडीज। ठीक है,
यस मैम। मैम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन, NNP NNP FC इक्वल्स टू GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट में GNP दे रखा है, GNP दे रखा है ना, और FC दे रखा है, और यहाँ आपको निकालना है NNP FC, इन दोनों को इक्वल टू करने के लिए क्या है, G और N में फर्क है, बाकी तो सेम है ना, तो माइनस क्या Yes, हो ma'am. जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है उससे निकालना, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, यस मैम। यस हाँ, मैम। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस। ओके, चलो आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मैम एक बार ये पूछना था मैम, कल स्कूल आना है कि नहीं आना मैम? नहीं, व्हेन वी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ना, उसके बाद। ठीक है, तो मैम कल इंग्लिश का पेपर होगा, मैम तो ऐसे बोल रही थी ना, फैब में कंडक्ट कराएंगी। नहीं, these half yearlies will be conducted in fact, but 20 marks examination will be conducted after the Sakrat. ठीक है, तो मैम कल कुछ भी नहीं है मैम? नहीं, कल आपको विदाउट इंफॉर्मेशन आपको नहीं आना है। ठीक है, when you people Okay, get ma'am. vaccinated you have to come with a concern letter of your father brother, आपके पेरेंट्स के कंसर्न लेटर के बाद आना है, और वैक्सीनेटेड होने के बाद ही आपको आना है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, और वी जस्ट कॉल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, यस ठीक है, मैम। और कुछ बात करनी है? चलो ठीक है, ओके। एक दिन में मैम 2-3 होंगे ना? क्या? एक दिन में